which is as uh, help in reducing the stress which is causing difficulties in the lives of women these days. And it helps in maintaining our blood parameters. It helps in improving our overall immunity. It helps in improving our system. So one of the important point I would like to mention that stress also reduces the immunity, it suppresses the immunity. So it is very important during these COVID times also that since we are focusing upon immunity so much, we need to focus upon making sure that we are exercising. So doing exercise, it improves our mental health as well as it improves our physical health. So which is a very essential point. Now, as part of lifestyle improvement, we always need to be in consultation with our doctors, with our dietitians, with our consultants, so that we can get the required information, and we can get a plan how we can actually improve our health, because everybody has a different system, the way their body works. So as per that, the doctors give them the advice, the dietitians give them the advice as per their own body requirements. So please do consult. And as a general information, it is important, as I mentioned, exercise and diet. We can make sure we are following a healthy diet. We are maintaining the hydration, very much important point, I think, which is discussed every time, that we need to maintain hydration. Even this is the summer time, so I need not mention that we need to maintain it, but still it has multiple benefit. Our body is made of water, so we need to make sure we are quenching our thirst, we are drinking enough water, and we are making sure that our body water levels are maintained, and our overall health is maintained by doing so. So these are very simple steps, I think everybody can follow that. And for women, these are of even more importance. So I would like to my other speakers to be uh, on the stage and go forward. So thank you so much. This was from my side, a small message about stress, and making sure that the cases of hypertension can be reduced in the country. Thank you so much. Thanks, Saman. Thank you so very much for a generalized, vague message which every woman should take along. Because if we won't focus, मैं मेरे ख्याल से एक नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में आती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. लेट्स कम ऑन टू हिंदी. एक अगर जनरल बात की जाए तो हम होम मेकर्स हैं, हम कैसे कैसे दूसरे लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं. आज की डेट में टू बी वेरी ऑनेस्ट, काम वाली बाई भी हम ही हैं, और होम मेकर भी हम ही हैं, और अपनी जॉब पे एक प्रोफेशनल भी हम ही हैं. So we need to consider our health first, then only we can take on all these things along. उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, just to focus on few things what we are focusing for others. जो दूसरों का हम इतना ध्यान रखते हैं, हमें अपना ध्यान भी साथ में रखना है, और थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे रखना है. उसका रीज़न ये है कि जो प्रॉब्लम शायद वुमेन में आज की डेट में जनरलाइज्ड देखी जा रही हैं, मोर देन कंपैरिजन टू लाइक मैन देखी जा रही हैं. Or apart from that, you people all are aware, like women have a menstrual cycle, women have pregnancies, deliveries, and so many other things along. And the stress levels, of course, if a person says that I am not into stress at all, especially being a homemaker, so I won't be able to deny that fact. Being a homemaker, it's a big like hype of the stress levels with us. We are carrying all that along, and we are just keeping them in our pocket and just showing with a smile कि हाँ जी हमें तो कोई stress ही नहीं है. ऐसा कोई भी deny नहीं कर सकता ये fact. And this stress is again connected, जैसे अमन ने भी highlight किया थोड़ा सा, कि हर एक प्रॉब्लम के साथ ये स्ट्रेस कनेक्टेड है कहीं ना कहीं. जो भी आज की डेट में लाइफस्टाइल चेंजेस या जो भी हमारे साथ हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड हो रही हैं. ये एक पॉइंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज योर लाइफस्टाइल, व्हाट आर यू इनटू, व्हाट वे यू आर टेकिंग योर लाइफ अलोंग. कि आप एक सेडेंटरी वर्कर हैं, आप एक घरेलू नारी हैं, आई मीन एक होम मेकर हैं सिंपली. और अगर आप एक बाहर जाते हैं, प्रोफेशनल हैं, आज की डेट में फ़िलहाल कोई भी नहीं जा रहा, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ज़्यादा लोगों का. जो जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उसको फिजिकली फिट रहने की बात करते हैं तो वो लीस्ट बॉदर्ड फैक्टर है. उसको कोई भी आज की डेट में उस लेवल पे कंसिडर नहीं कर रहा जिस लेवल पे वो होना चाहिए. रीज़न बीइंग कि हम लोगों के पास कुछ तो टाइम नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ कि हम उसको लीस्ट टाइम दे पा रहे हैं अपनी हेल्थ की तरफ अगर देखा जाए.
लेकिन ये सबको क्लियर है कि हमारी हेल्थ के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर हम खुद ही सही नहीं रहते तो डेफिनेटली वी आर क्रबिंग अप सो मैनी थिंग्स, एंड दैट इज अगेन रिलेटेड टू आर व्हाट यू कॉल डिजीज लेवल्स या कोई भी एडवांसमेंट। जो ये हमारा मतलब एक ही फैक्टर नहीं है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो वी कैन टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट इटसेल्फ, इट्स नॉट गुड। आप सबको पता है अभी तो खैर वायरस का वो चल रहा है, तो बिल्कुल ही गुड नहीं है। और अदरवाइज भी अगर देखा जाए तो हमारी एनवायरनमेंट कोई बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज पोल्यूटेंट्स आर देयर, टॉक्सिसिटी इज देयर, सो मैनी वायरसेस, माइक्रोब्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट वी आर ऑलरेडी कैरिंग अराउंड। और आज की डेट में तो एक बड़ा सा वायरस आ गया, कोरोना वायरस। उसे सबको अंदर बंद करके रखा हुआ है, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं टच करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, नॉट इवन द थिंग्स वी आर लाइक कंफर्टेबल विद। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकेशंस वी आर इनटू, सपोजिंगली अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मेडिकेशंस पे हैं। और अगर मेडिकेशंस की बात करें तो मेडिकेशंस के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, नॉट ओनली द सप्लीमेंट्स आई एम टॉकिंग ऑफ। सप्लीमेंट्स एक अलग चीज़ है दैट वी डोंट कंसिडर टू बी मेडिकेशन। बट अगर कोई डिजीज पर्सन जो ऑलरेडी इनटू मेडिकेशंस है, वो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स है। आई मीन इफ़ यू टॉक ऑफ कोई स्टीरॉयड थेरेपीज है जो नॉर्मली अरेथ्राइटिस और ऐसी चीज़ों में दी जाती है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड इन द लॉन्ग रन। स्टीरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। कोई भी एबीसी मेडिसिन है, नॉट इवन ए सिंगल पैरासिटामोल इज वी कैन टॉक कि वो बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस इज व्हाट वी आर टू कंसिडर, बिकॉज आज की डेट में वुमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज की अगर बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम से फॉर एग्जांपल जैसे अमन ने डिस्कस किया कि हाइपरटेंशन की बात की, hypertension, diabetes, obesity, and so many other things. These are all interconnected some or the other way. तो हम लोगों को कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों का हम लोग ध्यान रखने वाले हैं या क्या क्या चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं, वी कैन ऑलवेज कंसिडर दैट वो हमें पता भी होती हैं, बट टू सर्टेन एक्सटेंट हम लोग उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइपरटेंशन की बात आती है तो दूसरों को जब समझाना होता है तो बड़ी जल्दी से हम समझा देते हैं, अच्छा अच्छा बीपी हो गया, ऐसे करो नमक कम लेना शुरू कर दो, ऐसे करो चाय थोड़ी कम पियो, ऐसे करो, ऐसे कर लो, ये वो आइडिया सजेशंस बहुत सारे, हम डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग फटाक से अपने आइडियाज़ वहाँ पे शूट कर देते हैं। एंड इफ़ वी टॉक ऑफ आर सेल्स तो वी आर बिट इग्नोरेंट इन दैट केस, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। एंड सबसे पहली जो गड़बड़ होती है वो हमारी डाइट के साथ होती है। हम लोग वो लेवल पे, जिस लेवल पे हम अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखते हैं, वी डोंट टेक केयर ऑफ आर सेल्स। एंड आई होप कि एवरी लेडी विल, एवरी होम मेकर, एवरी वुमेन विल एडमिट दिस फैक्ट कि उस लेवल पे हम अपना ध्यान नहीं रखते। बिकॉज जब भी बात आती है टाइमिंग्स की, कभी टाइमिंग्स को लेके प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी और इशू को लेके प्रॉब्लम हो रही है, या वॉट एवर, लीस्ट इग्नोरेंट फैक्टर हो जाता है वो वाला कि हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। बट एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो डाइट इज द ओनली कंसिडरेशन, हेल्थ इज द ओनली कंसिडरेशन टुडे व्हाट वी आर सपोज टू लुक आफ्टर। सबसे बड़ी चीज़ हमें कोविड ने यही सिखाई है कि सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ है। एंड इफ़ यू आर हेल्दी एनफ देन यू कैन टैकल थिंग्स। इम्यून सिस्टम की बातें हो रही है, इम्यूनिटी की बातें हो रही हैं, सबको अच्छे से समझ आ गया। आई गेस कि छोटे छोटे बच्चों को भी समझ आ गया कि इम्यूनिटी बूस्टर्स खा रहे हैं आजकल, हम इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं हम लोग। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर आज की डेट में हम लोग उनको दे रहे हैं कि हाँ अभी इम्यूनिटी बूस्टर ले लो, आज ही एक दिन में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, वो एक अलग चीज़ है। बट डेफिनेटली वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस फैक्ट कि हमें इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, एंड दैट कैन ओनली बी डन विद द डाइट। उसके अलावा सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास, वी कैन टॉक ऑफ अबाउट दैट, बट इफ अ थिंग इज अवेलेबल एट योर होम इन टू योर डाइट इट सेल्फ, देन वाई कैंट वी डू दैट? वो हम वैसे ही क्यों नहीं कर सकते पहले? लेटर वी कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स। इन एनी केस मैं ये नहीं कहती कि आई एम 100% हेल्दी, मैं खुद अपने आप को भी यही कहूँगी कि मैं भी शायद कई लेवल्स पे कम हूँ, कोई प्रॉब्लम्स हैं मुझ में भी, मैं भी इन्फेक्शन फेस करती हूँ, मुझे भी एलर्जीज होती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम 100% हेल्दी। मैंने बोला ना कि उसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें आइडिया भी नहीं होता है टाइम्स। तो दैट वे बस हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम लोग अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर गुड हेल्दी डाइट, अपने जो रूटीन वाले हमारे पैरामीटर्स हम फॉलो करते हैं उनको थोड़ा सा चेंज करके, लाइक स्टार्ट गिविंग अ बिट ऑफ टाइम टू योर सेल्फ, एक्सरसाइजिंग, डाइट इटसेल्फ, और मेडिटेशन, योगा, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप। मैंने वही बोला ना कि सबका फोकस हेल्थ की तरफ हो गया, तो मुझसे ज़्यादा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ज्ञान दे रखा है सबको कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। सो वी आर ऑल इनटू एंड वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
तो ये चीज़ तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस वी कैन जनरलाइज वे में मैं ये चीज़ एक बात करूँगी कि जैसे सिस फॉर एग्जांपल अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ, हमारे पास जैसे केसेस आ रहे थे कोविड के पेशेंट्स के, तो व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग एंड सीइंग, जो भी लेडीज़ के साथ ओबेसिटी का इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, दोज पीपल वर मेजरली इनटू ट्रबल। और ओबेसिटी को अगर आप ये बोलें कि वेट गेन है या ओबेसिटी है, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। वेट गेन कुछ अलग चीज है, दोज आर नॉट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, दैट कैन बी ए कॉज टू ओबेसिटी अगेन। या वेट गेन है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, किसी में कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कोई इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सपोजिंगली किसी को जॉइंट पेन्स है, अरेथराइटिस है, that person doesn't like to walk and is not able to walk much the way we can, and that person is not like taking exercises and all that, तो हो सकता है कि उनके साथ ये इश्यूज हों। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम्स हम इनिशियल लेवल्स पे कवर अप कर जाते हैं, एंड वी नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, तो व्हाई नॉट। और आज की डेट में जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो ये है कि कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आ रही है ना, दैट इज टर्निंग टू अ बिग ट्रबल। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर being treated and what we are facing। कोई अगर छोटी सी आपको इशू हो रही है तो डोंट टेक इट दैट लाइटली, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है अगर देखा जाए। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट कि ये हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू बी अ डॉक्टर ऑन योर ओन और यू डोंट इवन ट्रीट एट होम, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन ट्राई एंड फोकस, अगर आपकी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो बी ऑन टू डॉक्टर। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट, बिकॉज आजकल प्रॉब्लम्स भी ऐसी ऐसी आ रही हैं। अगर कोविड जैसी इतनी बड़ी समस्या हम लोगों ने अभी इतनी छोटी एज में देख ली है, जो शायद नानी दादी ने भी देखी नहीं थी, पैंडेमिक जिसे कहा जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं जो हम इमेजिन नहीं करते कि इस एज में भी ऐसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीसीओएस की बात करते हैं, पीसीओडी की बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी एज में गर्ल्स को आज की डेट में ये प्रॉब्लम हो रही है। उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बट अगर ये बात की जाए कि 100% जेनेटिक फैक्टर है, फॉर एग्जांपल रूमेटाइड अर्थराइटिस की बात करते हैं, जेनेटिक फैक्टर इज देयर अगेन, बट उसमें ये भी है कि उसमें आपका लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है, आपकी डाइट रिस्पॉन्सिबल है। अगेन वही चीज़ें आ गई, वापस घूम के मैं वहीं पे पहुंच गई हूँ फिर से, वेयर फ्रॉम आई स्टार्टेड। वी नीड टू चेंज अवर लाइफस्टाइल, वी नीड टू चेंज अवर डाइटरी पैटर्न, एंड वी नीड टू फोकस ऑन आवर सेल्स, बट वी आर इग्नोरिंग द मोस्ट। हम लोगों को अपने आप पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉबेबली आवर मदर्स वर लाइक स्ट्रॉन्ग एनफ, जिन्होंने इतना हमें, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बट इवन देन आई एम सेइंग, इतना हमें झेल लिया और इतना हमें ब्रिंग एंड ब्रॉट अप कर दिया, इतने बड़े बड़े कर लिए। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए तो वी आर लूजिंग पेशेंस ऑन आवर किड्स ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स ओनली, बिकॉज हम लोग स्ट्रेस्ड हैं, हम लोग हाइप्ड है विद सर्टन थिंग्स इन द फैमिली, और वर्क लोड है या प्रोफेशनली हम लोग ऑक्यूपाइड है, तो वी आर जस्ट बीइंग क्रूअल टू समटाइम्स लाइक विद द किड्स। उन पे पेशेंस लूज कर देते हैं, सारा गुस्सा उन पे निकाल देते हैं हम शाम को। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू वर्क अपॉन। अगर वो स्ट्रेस लेवल्स हाई नहीं होंगे तो प्रॉबेबली ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी, और अगर हमारी हेल्थी एक लाइफस्टाइल होगी और अगर हम काम होंगे, माइंडफुल होंगे, तो दीज थिंग्स वोंट बी देयर लाइक बिग प्रॉब्लम टू हैंडल। ठीक है। और अगर बात आती है कि और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रखी है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रखी है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रखी है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रखी है, एंड द पीपल कम टू अस लाइक हाँ जी वेट लॉस करना है। अगर अब ये कहा जाए कि हाँ जी ठीक है, वी एडमिट दैट वी विल डील विद योर लॉस ऑफ वेट, बट इफ आई कमिट दैट आई विल डू इट इन अ डे, दैट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड पीपल कम टू अस डिमांडिंग कि हाँ जी महीने में 4-5 किलो तो रिड्यूस हो ही जाएगा ना। How can we promise that? That depends on you too. If you're not taking care of all these factors, how can I promise this to you? If you're not yourself interested, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना उसमें। मैं तो आपको एक डाइट प्लान दे दूंगी, आई कैन जस्ट गाइड यू विद अ फ्यू थिंग्स कि हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये चेंज कर लो अपने लाइफस्टाइल में, ऐसे कर लो। एंड द मेजर थिंग इज टू बी टेकन बाय यू ओनली। फिर से वही बात आ गई कि आप अपना ध्यान सबसे पहले रखोगे तभी मैं भी कुछ कर पाऊंगी। आई कैन जस्ट सपोर्ट यू विद माई गाइडेंस दैट दिस यू डू, दिस यू डू। डॉक्टर आपको सिर्फ एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, डॉक्टर आके आपको खिला नहीं सकता, डॉक्टर आके आपको संभाल नहीं सकता। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपना ध्यान खुद रखना है। एंड I think if there are any questions, like you can always write in the chat box. We can definitely take on. And I think I should move on to Archana ma'am.
like what message she is having in her mind. She's just passing a little smile, and I can just request her to unmute herself and just take on. Thank you so much, ma'am. Thank you very much, Upasana, and thank you, Aman. You people have shared a very good information. And as you are saying, like it's really very correct thing. Like women and men both are totally different in the structure as well as the duties and responsibilities. As मैं देख पा रही हूँ हमारे संग ज्यादातर लेडीज ही जुड़ी हुई हैं, तो वो समझ पा रही होंगी कि अगर उन्हें बाहर का काम भी करना है और घर का काम भी करना है तो डबल ड्यूटीज उनकी हो जाती हैं. और अदरवाइज अगर हम देखें तो फिजिकली अगर हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो मसल्स हमारी बॉडी में कम होती है, राइट. इसी वजह से हम लोग वीक फील करते हैं बहुत जल्दी, हमारी बोन्स में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. कई बार आप लोग देखते होंगे कि जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है वो लेडीज को ज्यादा हो रही है. दर्द बढ़ जा रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हम सोचते हैं वो हमारी हड्डियां वीक है. हड्डियां वीक होने के साथ साथ हमारी बॉडी में मसल्स कम है. तो मसल्स जब कम होती है, स्ट्रांग नहीं होती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है. तो इसीलिए जैसा कि बताया जा रहा है बार बार कि हमें अपनी मसल्स को सबसे पहले स्ट्रांग करना है. मसल्स स्ट्रांग करने का तरीका क्या है? हम रेगुलरली कुछ वर्कआउट करें. वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर जिम में सीधे काम कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, वो भी एक वर्कआउट ही है. पहले टाइम में आप देखिएगा लेडीज की बहुत स्ट्रेंथ होती थी, बड़े बड़े भारी भारी बाल्टियां और बोरे सब कुछ उठा लेते थे. आज की डेट में अगर हम लोग 3-4 किलो का थैला भी उठाकर घूमते हैं, लाइक अगर हम अपनी एज ग्रुप की बात करें तो हमारे दर्द होना शुरू हो जाते हैं कंधे, क्योंकि हम लोग इस तरह कुछ स्ट्रेंथन वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट. तो कुछ ना कुछ मसल्स के एक्सरसाइज रेगुलरली वॉक और रेगुलरली कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर, लाइक अपने शोल्डर्स के लिए, अपने थाइज के लिए, अपने शिन मसल्स के लिए, अपनी नीज के स्पेशली उसके आसपास के एरिया के लिए हम लोग वर्कआउट करें, जिससे हमारी मसल स्ट्रांग बने. क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट में जो मसल्स हैं वो कंपैरेटिवली रिलेटेड टू द मेल पार्ट हम लोगों की बॉडी में कम है. ओके. सेकंड थिंग, अगर मैं बात करती हूँ हमारी बॉडी में फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो अगर जब हम लोग फैट कंटेंट पर पहुंचते हैं तो हमें फैट रिड्यूस करने में बहुत टाइम लगता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, लेथार्जिक आ जाती है. लेथार्जी आने से क्या रहता है कि हम जरा सा भी थोड़ा सा भी खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को लग रहा है ना. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग डर के मारे फिर खाना कम कर देते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं. तो मोटे होने के लिए हमें वर्कआउट एक्स्ट्रा करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, राइट. हमें फैट कम नहीं करनी है, हमें प्रोटीन्स कम नहीं करनी है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन की कमी है, मसल्स की कमी है. बस अगर वनस्पति टू अगर मेल देखें तो हमारी बॉडी में जो है फैट कंटेंट ऑलरेडी 12% है, मेल्स में 3% होता है. मसल की अगर मैं बात करती हूँ तो 36% मसल्स है और मेल में 45% मसल है. तो हमें उस पर ध्यान देना है. इसी तरह से बोन मास की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों में 12% ही बोन का कहना चाहिए बोन मास है और मेल्स में 15% है. तो हमारी बोन्स भी वीक है. तो हमें अपने ऑर्गन्स के ऊपर हमें काम करना है, हमें प्रॉपर तरीका का बैलेंस डाइट खानी है, बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज सेड बाय ऑल. उसके साथ साथ हमें डाइवर्सिटी रखनी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में. माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर हम बोले तो विटामिन, मिनरल्स, जो कि हमें किससे मिलेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से. उसके साथ साथ स्पेशली लेडीज को क्योंकि पीरियड्स हो रहे होते हैं तो उनको आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अदर विटामिन एंड मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा है. तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें अपनी हेल्थ को संभालना पड़ेगा. अपने लिए थोड़ा सा हॉबी का टाइम भी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा फैमिली टाइम भी हमें को निकालना है. इस सब भागम भाग में होता क्या है, नॉर्मली हम कई बार पानी तक पीना भूल जाते हैं. छोटी सी चीज है कि हम पानी कम पी पा रहे होते हैं, राइट. क्योंकि हम पूरे दिन भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर. तो हमें थोड़ा शेड्यूल बनाना पड़ेगा हर चीज का कि हाउ वी कंटिन्यू अपना लाइफस्टाइल और अपनी लाइफस्टाइल में हम किस तरीके से काम करें जिससे कि हम अपने आप पर ध्यान दे पाए. क्योंकि सबसे ज्यादा काम हम ही कर पा रहे हैं. हम लोगों को वैसे भी दुर्गा माँ माना जाता है, हमारे 8 हाथ दिखते नहीं है बट रियली हमारे पास 8 हाथ होते हैं, क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटीज है, हमारा जो वर्क प्रोफेशन है वो हम बिल्कुल अष्टभुजाओं की तरह ही हम लोग काम करते हैं, राइट. तो अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. प्रेशर को रिलीज करने के लिए स्ट्रेस रिड्यूसिंग कुछ एक्सरसाइजेस करें, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, कुछ अपना म्यूजिक सुन सकते हैं. आपको अगर राइटिंग स्किल्स हैं आप कुछ लिखना शुरू कीजिए, और अगर आपको कुछ म्यूजिक लवर है तो आप म्यूजिक सुनिए, आप गाना गाइए, अपनी कहानियां लिखिए, और जो भी आपकी हॉबीज है अपनी उन हॉबीज को भी
कुछ समय निकालिए. अगर आप देखिए रात को अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा जग कर भी अपनी हॉबीज कंप्लीट करते हैं ना, तो नेक्स्ट डे आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ में पूरा दिन बिता पाएंगे. अगर आप थक हार करके सो जाते हैं तो अगले दिन फिर आप ना अनबने मन से सारे काम को करेंगे. तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए. मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी. कोई क्वेश्चंस है हम लोगों के साथ में, तो अब वो सब आप हम लोग ले सकते हैं. अगर आप लोग के कोई भी Ma'am, writing in the chat box. yes, आप Yeah. mute हो गए थे. Thank you so very much, ma'am. Thank you so very much for these messages and these guidelines. Actually, everyone is again and again stressing on lifestyle changes, me time, what we are ignoring about ourselves. सारा दिन हम अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं. Started from like, okay, we can just take on. Wait a second. सारी दुनिया के बारे में हम सोचते हैं, स्पेशली कोविड के बारे में सारा दिन हम बहुत सोचते हैं कि आज क्या नया हो गया, ब्लैक फंगस आ गया, वाइट फंगस आ गया, येलो फंगस आ गया. मतलब पता नहीं, शायद रिसर्चर्स कम रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद इवन ऑन द फोन इफ यू टॉक ऑफ और चैट बॉक्सेस में देखें तो वही डिस्कशन वहाँ चल रही होती है. अब ये ब्लैक फंगस क्या आ गया, या वी आर जस्ट पासिंग ऑन दोज मैसेजेस. So well, again and again we are stressing on health and dietary pattern and lifestyle. So we can be on to the questions now. Ma'am, I guess what's going, Aman, can you take this? What about PCOS, ma'am? Aman, are you there? Am I audible? Yes, I'm there. Okay. Somebody is asking about PCOS, so polycystic ovarian syndrome. So as Upasana already mentioned, it's a disease which is quite common these days. It's happening, and she was discussing about how it is happening. So she said not 100% heredity, but what is the other percent? That other percent is the environmental factor. How our environment, our diet, our lifestyle is changing that. Earlier, these kind of issues were very less. So what happens in the female reproductive system? There are ovaries. So in the ovaries there are cysts which starts to form. Now the formation of these kind of cysts has increased over the period of time. Now earlier it didn't used to happen, but now it is happening quite commonly, and more women are facing, even as she mentioned, the young girls are facing this kind of difficulty. Now what can be the cause? Because earlier the women were not facing these kind of difficulty, they were all very healthy. Now what suddenly happened that rise to this kind of PCOS, which later turned into the polycystic ovarian disease, and this polycystic ovarian disease, and later turns into the syndrome. So somewhere it is our lifestyle, somewhere our diet factor, which is, as I mentioned about the hormonal changes, stress is also a contributing factor. I need to mention. So we need to maintain that hormonal balance. Now there are various treatments which are available these days. Now first of all, because being a dietitian, I would suggest about the diet. So you can go for a particular consultation, get a planned diet chart as per the requirements. So diet can also help in improving the balancing the hormone levels. And there are other side effects which the girls may face after going through the PCOS difficulties. So there are other symptoms like the hair fall, and their reduction in the immunity, acne, and other challenges which are there. So all these can be tackled, and there are certain hormone balancing medicines which the doctors will be giving. So a particular consultation is very much required, and it is it is quite it can be improved, the condition and the situation can be improved over time. Thank you so much. Going to restart the meeting? Actually, only the less than 1 minute is left out. Ma'am, that's no problem. We can just wait, because sometimes it's like being right. Okay, fine. If something is happening, so then please everyone should join. We will restart. Definitely, right? To take on the questions. Thank please you. Guide on insomnia after menopause. Ma'am, will you like to take it, or should I? You continue, no issues. Okay. Okay. Well.